Good afternoon. This is Dr. Siran Mukherjee, Senior Regional Director, IGNOU Regional Center, Noida. And I welcome all our students who have joined so far in this induction meeting of postgraduate program students. I welcome all of you, and over the next 1 hour, it will be our effort to provide you with all important information, details pertaining to your program of study. I have with me Dr. Anjana, Deputy Director, IGNOU Regional Center, Noida. Dr. Anjana, most welcome to you in this induction meeting. Thank you so much. I have with me Mr. Sanjay Kumar, Sanjay ji, who is Executive Data Processing. Sanjay ji, आपका स्वागत है इस induction meeting में. Then I have with me our Assistant Executive Data Processing, Shri Satyendra Kushwaha ji. Satyendra Kushwaha ji, आपका स्वागत है इस induction meeting में. Thank you, ma'am. And let us begin. I welcome once again all the students who have joined us in this induction meeting for all postgraduate programs for July 2025 session. Here I would like to mention this is only for postgraduate program students, annual program students, not for semester program. That is not for MCA. It is not for MBA, MP or the specialization programs in MP. It is only for the postgraduate annual program students. You would all notice, dear students, you would all notice that so far the chat box is disabled and also question answer has been disabled. We request all of you to listen to us, the important information that we are all trying to give you, and then we will give you the opportunity to ask questions. You can ask relevant questions, doubts that you have, and accordingly, we will try to answer all your queries. Well, I am speaking on behalf of IGNOU Regional Center, Noida. And as you all know, Indira Gandhi National Open University is a central university under Ministry of Education, Government of India. And we have a national mandate. What does national mandate mean? National mandate mean we have presence across the country. Our regional centers are present all across the country in different states, all the states in fact. Our university, the headquarters is at Maidangadi near Saket in Delhi. Then we have 4 regional centers in Delhi NCR, one from which I'm speaking, RC Noida. Then we have Delhi 1, Delhi 2, Delhi 3. And then we have number of regional centers all across the country, 57 regional centers all across the country. And also we have some special regional centers which are taking care of the armed forces, paramilitary forces. So that forms the structure. And then finally, we have the third layer or part of our organization, that is the study centers or the learner support centers. The learner support centers are all located at different government colleges, government aided colleges, university affiliated colleges. And you all have been allotted to different colleges in the districts of Western UP and one district of East Delhi, that is in Vasundhara Enclave. So we have our presence across Western UP. That is, I would not like to name all the districts, but something like, Agra, Mathura, then Meerut, Modinagar, Muzaffarnagar, Saharanpur, Sambhal. So you see, we have a very, very, very wide network of study centers, and these are all located at different government colleges in all these cities.
and you have all been allotted these centers, either on the basis of the choice that you have given, or else you might have given some choice of a particular study center. But if in case the program that you have opted for, if that particular program is not on offer at that particular center, then it might be possible that due to administrative reasons, since the program is not activated at the LSC where you want to be enrolled, we might have shifted you all to, not you all, those particular students, to nearby study centers where this particular program is activated. Please remember that, because there are mails coming from all of you wherein you have asked that why my study center has been changed. So your study center basically has been changed due to administrative reasons, because maybe you have chosen Muzaffarnagar, you have chosen Saharanpur, you have chosen Muradabad, or maybe you have chosen Agra, you have chosen Mathura, Sambhal, Bijnor, whichever place you have chosen. It might just be possible that the program that you want to study in IGNOU is not activated there. And then in that case, we have no other choice but to shift you to a nearby study center where that particular program is activated. So that is about the allotment. Now you all must have got the confirmation letter that basically you can download from the Samarth portal from where you had taken the online admission. And then you would be receiving the counseling schedules. Counseling schedules in particular, you will not be receiving by mail or WhatsApp. You will not be receiving that. You will be having an access to the counseling schedule, which we upload at our website, in our social media, as and when we'll be receiving them from different LSCs. So when we receive the counseling schedule from LSCs, we'll be uploading them at the IGNOU website and IGNOU RC Noida website, and also the social media. You can have a look at that, and accordingly you can attend the counseling. Then of course there is the assessment part, that is the examination, assignment. Then we have a lot of online resources which we will be talking about in this induction meeting. We'll be talking about the assignments in detail. We'll be talking about the counseling sessions in detail. We'll be talking about special online resources. We'll be talking about the results. We'll be talking about the convocation. All this we'll be trying to provide you information about all this in the next 1 hour. And then followed by that, we will give you the opportunity to ask questions in the question answer box, that is the chat box. Meanwhile, I can see my colleagues are putting some very, very important information in the chat box. So you can, if you want, you can copy those URLs. During the next 1 hour, my colleagues will be putting different URLs in the chat box. You can copy those and you can keep them for future reference. I hope and I wish and I pray that you have a very, very fruitful, engaging, useful stay with us, academic stay with us during the next 2 years, 3 years, whatever that time may be, and hope that your hopes or the objectives behind which you have enrolled in this particular program in our university, those objectives are fulfilled and your endeavors are met. I wish you all the best. And now I request my colleague, Dr. Anjana, Deputy Director, IGNOU Regional Center, Noida, to please address all of you. Dr. Anjana, over to you, please. Thank you so much, ma'am. A very good afternoon to all my colleagues at Regional Center Noida and all the students also. Ma'am, may I seek your permission to kindly let me speak at the end, because let Sanjay ji and Satyen Kushwaji first. Absolutely fine. Absolutely fine. Absolutely. Please, What you can do is, if there is, you can just do a quick recap at the end. Okay? Right. And if there's any additional information that you would like to share with the students, you can do that at the end. Yeah. No problem. Absolutely fine. Then, okay, in that case, I request our Executive Data Processing, Shri Sanjay Kumar ji, to please join us and address the students. Sanjay ji, over to you.
थैंक यू मैम। ठीक। सभी को मेरा नमस्कार। अभी मैडम ने जो बातें बताई हैं वो आपने ध्यान से सुनी होंगी, और अब मैं आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। आपको वेलकम लेटर आपकी ईमेल के साथ जब एडमिशन कंफर्म होता है तो ईमेल में गया है, और उसमें कुछ लिंक्स गए हैं जो आपने ध्यान से पढ़े होंगे, और उन पे आपने आगे उनको चेक किया होगा। आगे जो भी उसमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो आपने पूरे किए होंगे। तो जैसे ही वेलकम लेटर जाता है तो उसमें आपका आईडी कार्ड जाता है, और उसमें उसका पासवर्ड होता है जो उसमें बताया गया है कि आपका पासवर्ड ही आपके आईडी कार्ड का पासवर्ड है। उसको ओपन करने के लिए आपको पासवर्ड, आपका एनरोलमेंट नंबर है वो डालना होगा। और उसके साथ साथ उसमें एक लिंक जाता है जो आपको आगे की प्रक्रिया के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है, क्योंकि अभी तक जो आपने समर्थ पोर्टल पे जाके अपना एडमिशन फॉर्म भरा, अब वो लिंक या वो यूजर आईडी पासवर्ड आगे काम नहीं करेगा। तो उसके लिए आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो उसके लिए मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ, या तो आपने कर लिया होगा पूरा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा, तो उसको मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अगर उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने अपना ईमेल आईडी किसी दूसरे का दिया होगा या फोन नंबर कोई दूसरा दिया होगा, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई होगी। तो मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ कि कैसे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी। ये हमारी इग्नू की वेबसाइट है। तो आपने जब पहली बार इसमें रजिस्ट्रेशन किया होगा, फॉर्म भरा होगा, तो इसी वेबसाइट से आप गए होंगे। तो ये स्टूडेंट सर्विसेज एक यहाँ पर ऑप्शन है। इसमें जब हम जाते हैं तो ये विंडो खुलती है, और इसमें यहाँ पर ये एडमिशन का एक पार्ट है यहाँ पर। तो इसमें अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ एक ये विंडो खुलती है। इसमें आपने जब फ्रेश एडमिशन लिया तो ये ऑप्शन अप्लाई किया होगा, अप्लाई फॉर ओडीएल प्रोग्राम, ये किसी ने किया होगा। ये ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए है। ये हमारा दूसरे किसी फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है, ये पीएचडी के लिए है। तो ये री रजिस्ट्रेशन एक ऑप्शन है। हम इस पे जाएंगे तो हमें वो लिंक मिलेगा जहां से हमें न्यू रजिस्टर करना है। अब ये ऑप्शन हमारे पास, ये विंडो हमारे पास खुली है। तो इसमें हमें क्या करना है, आपके पास अपना इनरोलमेंट नंबर आपके वेलकम लेटर में मिल गया है, वो इस यहाँ पर हम टाइप करेंगे। और ये नीचे न्यू रजिस्टर करके एक ऑप्शन आता है, इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमें ले जाएगा दूसरी विंडो पे, जिसमें पूछा जाएगा कि आपके आईडी कार्ड का पे जो आपका नाम है बिल्कुल सेम आपको वो डालना है। और उसके बाद ये कैप्चर आपको डालना है, कुछ ओटीपी आपकी ईमेल पे और जो फोन नंबर आपका रजिस्टर्ड है उस पे आएंगे, तब आपका एक वो नया पासवर्ड एक बनेगा। अब जब आपका नया पासवर्ड बन जाएगा, जो आपने पहले पासवर्ड बनाया था अपना फॉर्म सबमिट करते वक्त, वो अब यहाँ काम नहीं करेगा। अब आगे की सर्विसेज जो भी आपको मिलेंगी इसी लिंक से मिलेंगी, और यही जो आपका यूजर आईडी, आपका इनरोलमेंट नंबर होगा और पासवर्ड जो आप जनरेट करेंगे वो रहेगा। तो आगे की जानकारी सारी आपको यहाँ से मिलेंगी। तो जैसे मैं एक अभी आपको यहाँ से रोल नंबर यहाँ पे टाइप करूंगा, इसका पहले से ही रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो मैं आपको यहाँ से इस विंडो खोल के दिखाऊंगा। जैसे ही मैंने नंबर डाला है और पासवर्ड उनका डाल दिया है, तो ये एक विंडो खुलती है। तो अब सारी इंफॉर्मेशन आपकी इस विंडो में रहेगी। आप सभी काम आगे जो आप करेंगे, असाइनमेंट यहाँ मिलेंगे आपको। आपको अगले साल का रजिस्ट्रेशन करना है सेकेंड ईयर का, और आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। आगे जब अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो ये माई सर्टिफिकेट है, आपके सर्टिफिकेट जो भी आएगा सॉफ्ट कॉपी में यहीं पे मिलेगा आपको। तो आगे आपको केवल इसी विंडो से आपको काम करना है, और इसी यूजर आईडी और पासवर्ड को आपको याद रखना है। लेकिन अगर आप किसी कारण से अपना पासवर्ड आपका नहीं याद रहता है, या आप उसको लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं,
क्योंकि कई बार आपका सिस्टम में सेव रहता है, वो आप उसको नोट नहीं कर पाए हैं। तो आप हमें ईमेल भेजेंगे, आप ईमेल भेजिए अपना पासवर्ड रीसेट करने के लिए, हम यहाँ से उसको पासवर्ड को आपको रीसेट करके आपको ईमेल भेज देंगे, तब आप इस सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। तो इसमें अब इसके बाद में आता है आपको, क्योंकि आपका प्रोग्राम ईयरली प्रोग्राम है, तो आपको जो भी एक्टिविटीज करनी है, अभी तो आपकी काउंसलिंग शेड्यूल हमारे पास आएंगे जो आपको सेंटर दिए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी काउंसलिंग करेंगे। और उसके बाद आप जो भी मेन आपका फंक्शन शुरू होगा वो मार्च से शुरू होगा, क्योंकि मार्च में आप अपने असाइनमेंट सबमिट करेंगे, अपना री रजिस्ट्रेशन करेंगे। री रजिस्ट्रेशन मतलब सेकेंड ईयर की फीस आप जमा करेंगे और अपना एग्जाम फॉर्म भरेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अपना एक हमारे पास अपना आप अपना रिकॉर्ड जो चेक करेंगे जो हमारी वेबसाइट पे आता है, तो उसके लिए भी नो योर रजिस्ट्रेशन डिटेल आप अपनी चेक करेंगे, क्योंकि आपकी जो आपका एड्रेस आपने दिया है क्या वो ठीक है, या फोन नंबर जो आपने दिया है क्या वो ठीक है, आपके कोर्स जो है वो ठीक है। तो उसके लिए भी हम एक यहाँ पर एक स्क्रीन पे हम इसमें जाएंगे, तो एक नो योर स्टेटस है, इसी विंडो पे है यहाँ पर ये, तो ये ऑप्शन खुलता है यहाँ से, ये एक ऑप्शन खुलेगा। तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस किसी बच्चे का रिकॉर्ड खोल के दिखाता हूँ। ये कोई BAM प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, ये इस बच्चे का रिकॉर्ड आपका इस बच्चे का रिकॉर्ड सारा यहाँ अपडेट है, क्या उसका मीडियम है, क्या उसका प्रोग्राम है, क्या उसका नाम है, ये सारे नाम लिखा गया है। और ये कोर्स जो दिए गए हैं ये सारे नीचे कोर्स दिए गए हैं, तो ये इनके फर्स्ट ईयर के कोर्स हैं। ये ईमेल आईडी है, क्योंकि ईमेल आईडी ये पब्लिकली डिस्प्ले नहीं होती है, तो ये यहाँ पर इसको छुपाया गया है, इसको पूरी ईमेल आईडी और फोन नंबर यहाँ नहीं दिखाया गया है। लेकिन इसके ये ना आप समझें कि ये हमारा ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर गलत है, वो गलत नहीं है, उसको पब्लिक डोमेन में नहीं दिखा सकते, तो इसलिए ये यहाँ पर इस तरह से किया गया है। तो इसके बाद जब ये अपना सारा चेक कर ले, अगर आपके यहाँ पे कोई मिस्टेक इसमें आपको दिखाई देती है, मान लो एड्रेस आपका कुछ गलत लग रहा है, आपको आपसे गलत टाइप हो गया या किसी साइबर कैफे ने गलत डाल दिया, तो आप हमें ईमेल भेज सकते हैं और या एक लेटर भेज सकते हैं अपडेट करने के लिए, तो हम उसको यहाँ से अपडेट कर देते हैं और उसकी सारी जानकारी ये इस विंडो में सारे रिफ्लेक्ट होती है, किस डेट में किस टाइम पर आपने क्या, मतलब हमने यहाँ से क्या किया आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग, तो वो सारा यहाँ पर अपडेट होता है। और ये हमारा आपने जो फॉर्म भरते वक्त आपने जो स्टडी सेंटर लिया है वो ये है, यहाँ पर अपडेट होता है। लेकिन कुछ केस में ऐसा भी है कि जो स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है जिस सेंटर पर, वहाँ उस प्रोग्राम के स्टूडेंट बहुत कम होते हैं, तो वो हमें नियर बाई जो स्टडी सेंटर वहाँ पर वो शिफ्ट करने होते हैं। कई बार ऐसा है कि वो प्रोग्राम उसके पास में एक्टिवेट नहीं है, कहीं अलग दूसरी से थोड़ा दूर एक्टिवेट है, तो फिर हमें वहाँ पर वो शिफ्ट करने होते हैं। तो उसके लिए हमने सारे सेंटर्स को डेटा फाइनल करके भेज दिया है और वेबसाइट पे जो उनको नया स्टडी सेंटर मिला है वो सारा अपडेट कर दिया गया है और उनको ईमेल भेजी है कि आप अपना स्टडी सेंटर चेक कर लें उस लिंक से जा करके। तो सभी को पता लग जाएगा कि हमारा स्टडी सेंटर कौन सा है और सबका डाटा जा चुका है स्टडी सेंटर पे। तो एक बार आप स्टडी सेंटर पर विजिट जरूर करें, उससे आपको आपके कोर्स के बारे में पता लगेगा, कब कब आपकी काउंसलिंग होंगी वो पता लगेगा, आप अपने काउंसलर से मिलेंगे, वहाँ ऑफलाइन काउंसलिंग होंगी या ऑनलाइन होंगी तो ये आपको वहीं से पता लग जाएगा। और हमारी RC नोएडा की वेबसाइट पे भी काउंसलिंग शेड्यूल हम अपलोड करते हैं, तो उससे भी आपको जानकारी मिलेगी। तो फिर अब इसके बाद बात आती है स्टडी मटेरियल की, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के मन में वो होगा कि हमारा अभी तक स्टडी मटेरियल नहीं आया है। तो आपका प्रोग्राम ईयरली बेस प्रोग्राम है, तो आपको सबसे पहले जो हम स्टडी मटेरियल डिस्पैच करते हैं वो सेमेस्टर बेस प्रोग्राम जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं उनको देते हैं, क्योंकि उनकी परीक्षाएं अभी दिसंबर में होने वाली हैं। तो इसीलिए सबसे पहले सेमेस्टर बेस को भेजा जाता है, उसके बाद ईयरली बेस जो प्रोग्राम है उनके लिए भेजा जाता है। तो वही उसको हम चेक करने के लिए हम वापस इसी में जाएंगे नो योर स्टेटस में। तो यहाँ पर जैसे स्टडी मटेरियल स्टेटस दिखाया गया है, तो यहाँ पर अगर मैं जुलाई 25 के लिए क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक विंडो खुलेगी, इसमें मुझे पता लगेगा कि मेरा
स्टडी मटेरियल डिस्पैच हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि स्टडी मटेरियल केवल हेडक्वार्टर मैदानगढ़ी से डिस्पैच होता है स्टूडेंट्स के एड्रेस पर, लेकिन कभी कभी जो उस पर पता होता है वो गलत अगर अंकित हो गया है तो उसकी वजह से स्टूडेंट को वो मटेरियल नहीं मिल पाता है और वो उसके रीजनल सेंटर में चला जाता है जो उसने ऑप्ट किया है, जो उसका रीजनल सेंटर है वहां पर वो चला जाता है। तो उसके लिए फिर रीजनल सेंटर उनको ईमेल या एसएमएस भेजते हैं कि आप अपना यहाँ से आपका पैकेट यहाँ पर आ चुका है, रिटर्न आ चुका है, तो यहाँ से आप करेक्ट कर सकते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर मैं एक स्टेटस आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से वो आपको यहाँ पे देखना है। अगर आपका डिस्पैच हो गया तो भी डिटेल आएगी, और नहीं हुआ है तो भी उसकी डिटेल आएगी। ये मैं एक अभी नंबर डाल के आपको शो करूंगा। ये मैंने नंबर डाला है, ये बीएम के स्टूडेंट है, तो ये एक विंडो खुलती है, इनका सारा ये एड्रेस यहाँ पर दिखाया गया है, रीजन सेंटर दिखाया गया है और ये एड्रेस दिखाया गया है। तो इसी एड्रेस पे इनका मटेरियल जाएगा, लेकिन अभी इनको भेजा नहीं गया है क्योंकि अभी हम सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम की ही हमने वहां से डिस्पैच हुआ है। इनका ये सारा ये इतने कोर्स दिखाए, 7 कोर्स इसमें दिखाए गए हैं, हिंदी मीडियम है। जब ये डिस्पैच होगा तो यहाँ पर बार कोड भी दिखाई देगा, तो वो सारा अपडेट यहाँ होता है। जैसे अभी मैं एक दूसरा, अगर मैं जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम का रोल नंबर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे मैंने अभी दिखाया, मैंने जैसे अभी बताया था कि सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के लिए हम सबसे पहले मटेरियल डिस्पैच करते हैं क्योंकि उनकी परीक्षाएं अभी दिसंबर से शुरू होंगी। तो इनका मटेरियल डिस्पैच हो चुका है, ये सारे कोड इनके दिखाए गए हैं, इंग्लिश मीडियम है, ये बारकोड है, बारकोड मतलब स्पीड पोस्ट नंबर है जो आपको जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं, और ये डेट है किस डेट में इन्होंने भेजा है, ये लोड नंबर है, ये लेबल नंबर है जो अपने हमारे हेडक्वार्टर का एक कोड होता है, ये वो लेवल नंबर है। तो यहाँ से आप अपना स्टडी मटेरियल के लिए ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ पर है। और कई बार ऐसा होता है कि ये कुछ मटेरियल वहाँ से हेडक्वार्टर से डिस्पैच नहीं होता है, कहीं दूसरे रीजन सेंटर से होता है, तो वो भी यहाँ पर वहाँ बता दिया जाता है कि आपका स्टडी मटेरियल कौन से रीजन सेंटर से डिस्पैच होगा। अब इसमें ये भी होता है कि कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि अपना सॉफ्ट कॉपी में वो मटेरियल चूज करते हैं जब अपना फॉर्म भरते हैं, तो वो लेकिन उनको पता नहीं होता कि हमने सॉफ्ट कॉपी में लिया है या हार्ड कॉपी में लिया है, क्योंकि कई बार लोग साइबर कैफे से फॉर्म भराते हैं और वो साइबर कैफे वाले उनको 15% 15% डिस्काउंट के साथ में वो उनका फॉर्म भर देते हैं, जिससे उनकी फीस कम जाती है, तो उनको हार्ड कॉपी में स्टडी मटेरियल नहीं मिलता है। लेकिन वो यहाँ पर हम जब यहाँ पर हम रिफ्लेक्ट करते हैं उसको कि आपने सॉफ्ट कॉपी को ऑप्ट किया है, ना कि ओडीएल मतलब उसमें हार्ड कॉपी में लिया है। तो वो कई बार ऐसे स्टूडेंट भी आ जाते हैं कि हमें मटेरियल नहीं मिला, हमें मटेरियल नहीं मिला है। तो जब हम यहाँ पर अपने रिकॉर्ड में चेक करते हैं तो उसमें पता लगता है कि इन्होंने तो सॉफ्ट कॉपी में चूज किया है, तो इनका हार्ड कॉपी में इनको नहीं मिलेगा। तो फिर वो या तो वो परचेज करते हैं या फिर दूसरे कोई अरेंजमेंट वो करते हैं। लेकिन इस तरह की भी क्वेरी हमारे पास हमने देखने को मिली है कि स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता कि उसने क्या लिया है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो बाहर से साइबर कैफे से अपना फॉर्म भरवा लेते हैं, उनको पता नहीं लग पाता। तो ये एक स्टडी मटेरियल चेक करने की तो ये प्रोसेस मैंने आपको बताया है। और दूसरा ये है कि अब आगे जब आप अपनी काउंसलिंग के लिए हमारी वेबसाइट से चेक करते रहेंगे, काउंसलिंग सेशन के लिए वहाँ पर हम अपलोड करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी काउंसलिंग पूरी करेंगे, चाहे वो ऑनलाइन में है चाहे वो ऑफलाइन में है। उसके लिए आप अपने स्टडी सेंटर के भी टच में रहेंगे और हमारी वेबसाइट को भी चेक करते रहेंगे। तो मार्च, जैसे ही मार्च आता है तो आपका पहला एग्जाम होगा जून 26 में। तो जून 26 में जब आपका एग्जाम होगा तो उससे पहले आपको 3 तरह के काम करने होंगे। एक तो आपको अपना असाइनमेंट पूरा करना है, वो असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट करना है। अगर आप फिजिकली नहीं जा सकते हैं तो फिर आप बाई पोस्ट भेज सकते हैं, लेकिन जब आप बाई पोस्ट भेजेंगे या फिजिकली जाकर भी आप सबमिट करेंगे तो वहां से एक आपको रिसीविंग मिलती है, वो आप उसको संभाल के जरूर रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आया है कि मार्क्स स्टूडेंट के नहीं आ पाते हैं सेंटर से, तो वो फिर लिखते हैं कि हमने तो असाइनमेंट जमा किए हैं और वो कोई रसीद या कोई रिसिप्ट वहां से नहीं दे पाते हैं, तो हम कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं होते कि आपने जमा किए हैं नहीं किए। अगर वो हमें रिसिप्ट देते हैं तो हम इस सेंटर को बोलते हैं कि आपने ये मार्क्स इनके छूट गए हैं, इन्होंने सबमिट किए थे, तो फिर वो वहां से ट्रैक हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो इसलिए आप उस जो आपको रिसिप्ट मिलती है उसको आप संभाल के रखिए जब तक कि आप
आपके ग्रेड कार्ड में मार्क्स नहीं आ जाते हैं, तब तक आप उसको जरूर रखिएगा। और अगर कोई आपको सबमिशन के टाइम पर, असाइनमेंट सबमिशन के टाइम पर रसीद नहीं देता है तो उससे मांगिए आप कि आप, मैंने आपको सबमिट किए हैं, आप मुझे इसकी रिसीप्ट जरूर दें। तो ये तो असाइनमेंट का हो गया, आप असाइनमेंट अपने स्टडी सेंटर पे जमा करेंगे। और फिर आता है एग्जाम फॉर्म भरना है आपको। जून में जो एग्जाम होगा उसका एग्जाम फॉर्म मार्च से शुरू हो जाता है। संजय जी, मार्च, सॉरी टू अप्रैल, मई, इंटरप्ट। मई में भी रहता है। मई में हो सकता है जो है लेट फीस कुछ ज्यादा हो जाए, लेकिन मई में भी वो एग्जाम फॉर्म भरा जाता है, लेकिन वो लेट फीस के साथ रहेगा। तो जब एग्जाम फॉर्म आप भर देंगे तो फिर जून से जो भी हमारा शेड्यूल एग्जाम का बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम, जो सेंटर आप चूज करेंगे उस पर मिलेगा। एग्जाम सेंटर आप कहीं भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अपना जो स्टडी सेंटर है वहीं पर आपको देना है। तो कई बार ऐसा भी है कि जो स्टडी सेंटर है होता है आपका, वो एग्जाम सेंटर नहीं बनता है, तो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप अपना वो एग्जाम सेंटर ले सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी जहां पर आपको स्टडी सेंटर मिला है वहीं आपको एग्जाम देना है। आप ऑल ओवर इंडिया एग्जाम कहीं भी देंगे, वहीं आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा। तो इसके बाद, इसके साथ साथ ही आपको करना है कि सेकेंड ईयर की फीस, आपको सेकेंड ईयर की फीस भी सबमिट करनी है। तो सेकेंड ईयर की फीस भी आपको मार्च में ही सबमिट करनी है। तो आप ये सोचेंगे कि भाई अभी तो हमारे फर्स्ट ईयर के एग्जाम नहीं हुए हैं और हमें से सेकेंड ईयर की फीस वो ले रहे हैं, तो आपको सेकेंड ईयर की फीस इसलिए सबमिट करनी है कि जैसे आप जून में आप अपना एग्जाम खत्म कर देंगे तो जुलाई से फिर आपका सेकेंड ईयर शुरू हो जाएगा। तो उस प्रक्रिया को पहले ही पूरा किया जाता है, तो इसीलिए हम मार्च से उस डेट को शुरू करते हैं। तो फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून तक भी जाती है, तो वो उस डेट्स में हम अपना सेकेंड ईयर का फॉर्म आपको भरना है। तो फॉर्म जब आप भर देंगे तो फिर आपका जुलाई से सेकेंड ईयर शुरू हो जाएगा। फिर जैसे फर्स्ट ईयर में आपका प्रोसेस शुरू हुआ था, फिर वो सेकेंड ईयर में आपका वो शुरू हो जाएगा। ऐसे ही फिर वो आपका असाइनमेंट जमा करेंगे, अपनी काउंसलिंग करेंगे और एग्जाम फॉर्म भरेंगे, सारा सेम प्रोसेस है। तो ये मैंने आपको बताया है। तो आईडी कार्ड के बारे में मैं आपको ये बताऊंगा कि आईडी कार्ड, अगर आपको, पहली बात तो आईडी कार्ड आपका गया है, उसके कंफर्मेशन लेटर में गया है। तो ये जो है कंफर्मेशन लेटर जो आपको गया है उसमें आपका आईडी कार्ड गया है, लेकिन अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं आईडी कार्ड को तो हमें आप ईमेल भेज सकते हैं, और ईमेल भेज सकते हैं तो हम आपको आपका आईडी कार्ड डाउनलोड करके हम आपको भेजेंगे। इसके लिए आप हमें, और हमारी ईमेल आईडी है जो आरसी नोएडा की ईमेल आईडी है, उस पर आप हमें ईमेल भेज सकते हैं, या फोन या कोई लेटर भेज सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम आपका आईडी कार्ड या और भी कोई आपकी प्रॉब्लम है वो हमें ईमेल कर सकते हैं। कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको लगेगा कि हमारा स्टडी सेंटर बहुत दूर हो गया है, हमें नियर बाई में हमें चेंज कराना है, तो उसके लिए भी आप हमें ईमेल भेज सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। तो फ़ोन कई बार आपको नहीं बात हो पाएगी क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आती हैं, आपका हो सकता है फ़ोन उस टाइम इंगेज जा रहा हो, लेकिन आप हमें ईमेल भेजिए और ईमेल का आपको जवाब जरूर मिलेगा। सेम डे अगर नहीं मिल पाता तो नेक्स्ट डे या 1 या 2 दिन में आपको जरूर उसका जवाब दिया जाता है, क्योंकि हमारे पास ईमेल भी बल्क में ईमेल आती है, तो डेली उनका जवाब देना संभव नहीं है, हो सकता है आपको नेक्स्ट डे उसका जवाब दिया जाए। तो ये आपको एडमिशन से संबंधित सारी बातें हो गई हैं। आगे जो भी आपको प्रोसेस करना है वो मैंने आपको बताया। तो आगे की जानकारी के लिए मैं मैडम को कहूँगा कि मैडम इधर से मैंने अपना पूरा किया है। मैडम। थैंक यू संजय जी, थैंक यू सो मच ये सब जानकारी देने के लिए विद्यार्थियों को। अब सत्येंद्र कुशवाहा जी से रिक्वेस्ट करेंगे, सत्येंद्र जी आप प्लीज आगे की प्रोसीडिंग्स को शुरू कर दीजिए और स्टूडेंट्स को आगे की जो जानकारी है वो प्लीज दीजिएगा। सत्येंद्र जी। जी मैम, जी मैम। नमस्कार, इग्नू क्षेत्रीय केंद्र नोएडा की तरफ से मैं आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।
तो आज की इस इंडक्शन मीटिंग में जैसे कि मैडम ने बताया कि हमने जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि स्नातकोत्तर प्रोग्राम्स के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये सेशन रखा है। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। मान लीजिए आपके मन में बहुत सारे विचार आते हैं उस वीडियो को देखने के बाद, तो आप उन प्रश्नों को अपने पास रखिए। जब इस मीटिंग का लास्ट सेशन होगा तो आप वहाँ पे वो प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो इग्नू में एडमिशन हो गया, बहुत बहुत बधाई। वेलकम लेटर भी आ गया होगा। लेकिन अब आगे क्या करना है? अगर ये सवाल मन में घूम रहा है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए अगले कुछ मिनटों में एडमिशन से लेकर पहली परीक्षा तक का पूरा रास्ता एकदम आसान स्टेप्स में समझते हैं। तो देखिए, सारी कहानी की शुरुआत होती है इस वेलकम लेटर से जो आपके ईमेल पर आया होगा। चलिए इसे डिकोड करते हैं और पता लगाते हैं कि इसमें सबसे जरूरी जानकारी क्या है और हमारा सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए। हमने इग्नू की इस पूरी जर्नी को 4 आसान हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि शुरुआती डिजिटल स्टेप्स क्या हैं, फिर जानेंगे कि स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा, उसके बाद आपकी पूरी एकेडमिक जर्नी को समझेंगे और आखिर में अगर कोई दिक्कत आए तो सपोर्ट के लिए किससे और कैसे कांटेक्ट करना है ये भी देखेंगे। तो शुरू करें। हमारा पहला पड़ाव आपके डिजिटल फर्स्ट स्टेप्स। एडमिशन कंफर्म होते ही सबसे पहले ऑनलाइन जाके यही सारे काम निपटाने हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी स्टार्टिंग चेकलिस्ट। एकदम सिंपल है। स्टेप 1, वेलकम ईमेल में एक फाइल अटैच्ड होगी, वो आपका आईडी कार्ड है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। उसे खोलने का पासवर्ड वो आपका एनरोलमेंट नंबर ही है। स्टेप 2, ignou.samarth.edu पर जाकर स्टूडेंट पोर्टल पर खुद को रजिस्टर कर लें। और हाँ, स्टेप 3 बहुत जरूरी है। एडमिशन के 2 से 3 हफ्तों बाद ऑनलाइन जाकर अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटस और स्टडी सेंटर की डिटेल्स एक बार जरूर कंफर्म कर लें। अच्छा, तो ई ज्ञान संगम इग्नू के नोएडा रीजनल सेंटर का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका लक्ष्य है छात्रों के लिए, खासकर दूरस्थ शिक्षा के छात्रों के लिए, पढ़ाई से जुड़े सभी जरूरी संसाधन जैसे प्रोग्राम गाइड, स्टडी मटेरियल और खास तौर पर वीडियो लेक्चर एक ही जगह पर आसानी से उपलब्ध कराना। बिल्कुल सही। वो एक क्लिक में अनेक संसाधन वाली बात। हाँ, बिल्कुल। ये सेंट्रलाइजेशन और ईज ऑफ एक्सेस पर फोकस करता है। ये डिजिटल स्टूडेंट सपोर्ट का एक कॉन्क्रीट उदाहरण पेश करने की कोशिश है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके छात्रों की पढ़ाई में मदद करना। चलिए ऑनलाइन सेटअप वाला काम तो हो गया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, यानी कि हमारी लर्निंग टूल किट, हमारा स्टडी मटेरियल। आखिर पढ़ाई तो इसी से शुरू होगी है ना। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है जो आपके प्रोग्राम पर डिपेंड करती है। अगर आप ओडीएल प्रोग्राम में हैं और आपने प्रिंटेड किताबें चुनी है तो वो डाक के जरिए आपके घर आएंगी। आप उनका डिस्पैच स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। वहीं अगर आप ऑनलाइन प्रोग्राम में हैं तो कोई प्रिंटेड मटेरियल नहीं भेजा जाएगा। आपकी सारी किताबें, असाइनमेंट्स, सब कुछ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी एलएमएस पर ही मिलेगा। किताबों के अलावा इग्नू के पास एक डिजिटल खजाना भी है। ई ज्ञान कोश वेबसाइट से सारा मटेरियल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इग्नू का ई कंटेंट ऐप भी है, मतलब चलते फिरते कहीं भी पढ़ाई कर सकते हैं। सिलेबस और एग्जाम की पूरी डिटेल प्रोग्राम गाइड में मिलेगी और ईएमपीसी इग्नू के यूट्यूब चैनल पर तो वीडियो लेक्चर्स का पूरा भंडार है। तो अब जब मटेरियल हाथ में है तो ये जानना भी जरूरी है कि पढ़ाई का सफर चलेगा कैसे। सेक्शन 3 इसी बारे में है कि आपकी एकेडमिक जर्नी की लय, उसका रिदम क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं काउंसलिंग सेशंस की। इन्हें आप अपनी क्लास की तरह समझ सकते हैं जहां एकेडमिक काउंसलर से अपने सारे डाउट्स क्लियर किए जा सकते हैं। एक बात ध्यान में रखनी है, थ्योरी सेशंस में जाना अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल सेशंस में हाजिरी लगाना यानी कि अटेंडेंस एकदम जरूरी है, वो मैंडेटरी है। इसके बाद आते हैं असाइनमेंट्स। ये हर कोर्स का एक बेहद जरूरी हिस्सा है और सबसे जरूरी बात यह है कि जवाब आपके अपने शब्दों में, अपनी समझ से लिखे हुए होने चाहिए। कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ काम रिजेक्ट हो सकता है, तो इस बात का खास ख्याल रखें। और ये असाइनमेंट्स कितने जरूरी हैं? इसका जवाब है ये नंबर 25 से 30%। सोचिए आपके फाइनल ग्रेड्स में इतना बड़ा हिस्सा असाइनमेंट्स का होता है। और ये भी जान लीजिए कि असाइनमेंट जमा किए बिना फाइनल परीक्षा में बैठ ही नहीं सकते। फिर आते हैं टर्म एंड एग्जाम्स, जिन्हें टीईई भी कहते हैं। ये साल में 2 बार होते हैं, जून में और दिसंबर में, और इनमें बैठने के लिए आपको ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरना होता है। तो एक सेमेस्टर पूरा हुआ, अब अगले की तैयारी करें।
लेकिन रुकिए, अगले सेमेस्टर में जाने से पहले एक बहुत ही जरूरी स्टेप है, री रजिस्ट्रेशन। बैचलर और मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स को अगले साल या सेमेस्टर की पढ़ाई जारी रखने के लिए री रजिस्टर करना होता है। और सबसे खास बात, इसके लिए पिछले एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार नहीं करना है, तभी आपका कोर्स टाइम पर पूरा हो पाएगा। अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे काम के सेक्शन पर, सेक्शन 4, सपोर्ट और की कॉन्टैक्ट्स। मतलब अगर कहीं कोई मुश्किल आए तो मदद के लिए कहां जाना है, किससे बात करनी है। मदद चाहिए तो परेशान होने की जरूरत नहीं, शुरुआत यहां से करनी है। ये टेबल समझ लीजिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग गाइड है। जैसे नाम या पते में कुछ ठीक कराना है तो सीधे रीजनल सेंटर जाइए। स्टडी मटेरियल नहीं पहुंचा तो रजिस्ट्रार एमपीडीडी को संपर्क करें। असाइनमेंट के नंबर अपडेट नहीं हुए, इसके लिए भी रीजनल सेंटर जाना होगा। और एग्जाम रिजल्ट या ग्रेड कार्ड से जुड़ी कोई बात हो तो इस ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। इनके अलावा ये कुछ जरूरी वेबसाइट्स हैं, इन्हें तो बुकमार्क कर ही लेना चाहिए। और काउंसलिंग या असाइनमेंट से जुड़ी हर घोषणा के लिए अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। और हाँ, आजकल के जमाने में अपडेटेड रहना सबसे जरूरी है ना? तो कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना हो, इसके लिए इग्नू के ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल्स को जरूर फॉलो करें। फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर सारी ताजा जानकारी सबसे पहले मिलती है। तो बस ये था आपका इग्नू का क्विक स्टार्ट गाइड। एक नया और रोमांचक सफर शुरू हो चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने कोशिश की है कि आपके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए जो बेसिक मापदंड हैं, जैसे कि असाइनमेंट जमा करना है, री रजिस्ट्रेशन कराना है और साथ ही साथ आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, तो इसके बारे में आपको एक आइडिया मिलेगा। बाकी जैसा कि वीडियो के माध्यम से आपने देखा कि हम बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, वेबसाइट की बात कर रहे हैं, तो एक बार मैं आपको उन सभी वेबसाइट्स से, जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स हैं, जो हमारे इम्पोर्टेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे मैं आपको परिचय कराता हूं। तो मैं एक बार फिर से अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं। चलिए, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने इग्नू की वेबसाइट की तरफ। ये हमारी इग्नू की मेन वेबसाइट है। तो यहाँ पे इग्नू के विद्यार्थियों के लिए एक स्पेशल पेज बनाया गया है, जिसको आप स्टूडेंट सर्विसेज पर जा करके एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, बेसिकली ये विद्यार्थियों के हिसाब से बनाई गई हैं। जैसे कि एडमिशन से संबंधित है, आपके ई लर्निंग रिसोर्सेज का पेज है, स्वयं प्रभा चैनल है जहां से भी आप अपनी ई लर्निंग कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप डाउनलोड सेक्शन में जाकर के अकाउंट प्रोस्पेक्टस, जो कि इग्नू का मेन डॉक्यूमेंट है, इसको भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जहाँ पे विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे देखिए असाइनमेंट का एक सेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर जा करके आप असाइनमेंट अपने आपका जो प्रोग्राम है उसको यहाँ पे आप सर्च बॉक्स में लिखेंगे। अभी ये पेज लोड हो रहा है, तो वहाँ से आपको आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। असाइनमेंट क्या होता है इसके बारे में भी हम अलग से बात करेंगे। एक बार मैं आपको ये बताना चाह रहा था, जैसे मान लीजिए आप MEG प्रोग्राम के अगर स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे सर्च पेज में अपने प्रोग्राम का नाम टाइप करेंगे। तो MEG प्रोग्राम में जो जो कोर्स चल रहे हैं, और आपको अपना कोर्स कहाँ से पता चलेगा कि आप किस कोर्स के लिए रजिस्टर्ड हैं, तो इसके लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल देखना होगा, जो कि जैसे अभी संजय जी ने आपको बताया ही है किस तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल देख पाएंगे। तो वहाँ पे आप देख पाएंगे कि आप किस किस पेपर के लिए रजिस्टर्ड हैं। मैं एक बार ये, जैसे ये संजय जी आपको बता रहे थे किसी विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन डिटेल, तो यहाँ पे ये जो नीचे लिखा होता है, यहाँ पे आपका एडमिशन का सेशन होता है और इसी के सामने यहाँ पे आपके कोर्सेस लिखे होते हैं। तो जिन जिन कोर्सेज के लिए आप रजिस्टर्ड हैं, ये तो किसी BAM के विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन डिटेल है, आप अपना निकालेंगे और अपने कोर्सेज के हिसाब से फिर आप अपने जो असाइनमेंट्स हैं उनको आप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो ये चूंकि बहुत सारे विद्यार्थी ये मेल करते हैं कि हम असाइनमेंट डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको ये बताना जरूरी था। तो ये डाउनलोड सेक्शन है, यहाँ पे और भी चीजें हैं, आप इनको तसल्ली से देखिएगा। फिर आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे, उसका लिंक यहाँ पे दिया गया है। रिजल्ट आप यहाँ से देख पाएंगे। स्टेटस के बारे में ऑलरेडी बताया जा चुका है, आप अपना एडमिशन और स्टडी मटेरियल का स्टेटस यहाँ पे देख पाएंगे। तो बेसिकली ये पेज विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। तो आप इन सभी लिंक्स को एक बार एक्सेस करिएगा तो आपको और डिटेल में जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। तो ये इग्नू की वेबसाइट के बारे में था। फिर हम चलते हैं अपने रीजनल सेंटर नोएडा की वेबसाइट की तरफ। तो ये जो आप पेज सामने देख पा रहे होंगे, ये इग्नू रीजनल सेंटर नोएडा की वेबसाइट का होम पेज है। यहाँ पे देखिए
ऊपर आप देखते हैं तो यहाँ पे एक स्टूडेंट कॉर्नर का पेज भी है, देन स्टडी सेंटर्स का है। तो अभी संजय जी बता रहे थे कि बहुत सारे विद्यार्थियों का स्टडी सेंटर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से चेंज करना पड़ता है कई बार। तो आप अपने स्टडी सेंटर का कोड आपको मिल गया होगा जब आप रजिस्ट्रेशन डिटेल में जाते हैं, लेकिन कोड से आपको ये नहीं पता चलता कि इस सेंटर का एड्रेस क्या है, क्या नाम है। तो यहाँ पे आप जाकर के अपना कोड देखिएगा कि कौन सा कोड आपका है, और यहाँ पे आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएगी, इस सेंटर का क्या नाम है, क्या एड्रेस है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ पे चल रहे हैं। तो ये चीज भी आप यहाँ पे जाके जरूर करें। तो ये स्टडी सेंटर के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर आप देखिए यहाँ पे अबाउट अस वाला जो सेक्शन है, इस पे कुछ हम लिंक्स अपडेट हमने कर रखा है, जो करंट लिंक चलते हैं। जैसे ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म का लिंक है, एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं दिसंबर 2025 सेशन के लिए। उसी के नीचे ये स्टूडेंट सर्विसेज का लिंक दिया है, जो इग्नू की मेन वेबसाइट से लिंक है, जहां अभी मैं आपको बता रहा था वही लिंक है ये। देन फिर यहाँ पे ई ज्ञान संगम वेब पोर्टल के बारे में एक लिंक दिया गया है, तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप हमारा जो रीजनल सेंटर नोएडा के द्वारा बनाया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप चूंकि आप लोग चूंकि मास्टर प्रोग्राम के विद्यार्थी हैं, ये तो पहले इस वेब पोर्टल का होम पेज है, आप देख लीजिए। इसमें सभी प्रोग्राम्स के कैटेगरी वाइज लिंक दिए गए हैं। अब चूंकि हम लोग आज मास्टर प्रोग्राम के विद्यार्थियों के लिए इंडक्शन प्रोग्राम कर रहे हैं, तो चलिए मैं आपके प्रोग्राम वाले पेज पे चलता हूँ। तो ये देखिए मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स की जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सभी यहाँ पे दिए गए हैं। आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आप किसी भी प्रोग्राम में जाइए, आपको जो भी प्रोग्राम है आप यहाँ से अपनी प्रोग्राम गाइड डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, और आपके प्रोग्राम से संबंधित जो वीडियो लेक्चर्स हैं, जो कि हमारे इग्नू के द्वारा रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो हमारे स्कूल्स हैं, जो वहाँ पे हमारे प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं, वो वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं इग्नू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल EMPC पे। वहाँ से हमने उन वीडियोस को यहाँ पे आपके लिए एक जगह पे संग्रहित किया है। तो इस तरह से हम सभी प्रोग्राम के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे हमने स्टडी मटेरियल, प्रोग्राम गाइड और वीडियो लेक्चर्स की लिंक दे रखे हैं। तो इससे आपको काफी मदद मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसको डेली अपडेट करते हैं। जैसे ही कोई वीडियो लेक्चर हमें वहां से प्राप्त होता है, हम उसको यहाँ पे उसका लिंक शेयर करते हैं। तो आप जरूर एक बार इस पोर्टल पे जाइएगा, आपको काफी यहाँ से आसानी होने वाली है। आप अपना यहाँ से प्रोग्राम गाइड डाउनलोड कर लीजिए। इसी तरह से आपको अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना है, स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लीजिए। और इसी तरह से वीडियो लेक्चर की हम बात कर रहे थे, तो आप कोई वीडियो लेक्चर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये था हमारा जो पोर्टल है ई ज्ञान संगम, तो आप इसकी जरूर मदद लीजिए। आपके अध्ययन में ये बहुत मददगार साबित होने वाला है। इसके अलावा जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो जब हम इस वेबसाइट पे जाते हैं, रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे जाते हैं, तो हमने ऊपर देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिया हुआ है। ये हमारे रीजनल सेंटर का एड्रेस है, ईमेल आईडी है, और नीचे देखिए कई बार आपको आने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे गूगल मैप का हमने लिंक भी दे रखा है, आप इसको एक्सेस करके हमारे रीजनल सेंटर पे पहुंच सकते हैं। देन इसके बाद नीचे यहाँ पे हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब का लिंक दिया है, फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम और ट्विटर का लिंक दिया हुआ है। आप इन लिंक्स पे क्लिक करके जाइए, इनको फॉलो करिए। यहाँ पे हम डेली बेसिस कुछ ना कुछ जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, वो शेयर करते हैं। बाकी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इन लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको इग्नू रीजनल सेंटर नोएडा का पेज मिलेगा। जैसे ये ट्विटर हैंडल का पेज है, यहाँ पे हम जो इग्नू मुख्यालय द्वारा ट्वीट्स होते हैं उनको भी रिट्वीट करते हैं, और साथ ही साथ हमारे यहाँ के जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वो भी हम यहाँ पे आप तक पहुँचाते हैं। इसी तरह से ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल में भी हम जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं हमारे इग्नू के विद्यार्थियों के लिए, उनको डेली यहाँ पे अपलोड करते हैं। ये हमारा रीजनल सेंटर नोएडा का फेसबुक पेज है, यहाँ पर भी आपको इग्नू से संबंधित डेली अपडेट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। आप यहाँ पे विजिट करिए तो आप लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। तो ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे, उनके बारे में मैंने आपको बताया। मैंने आपको इग्नू की मेन वेबसाइट के बारे में बता दिया। आप अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल चेक कर सकते हैं इस पेज पे जा करके। ई ज्ञान संगम वेबसाइट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ असाइनमेंट के बारे में यहाँ पे जल्दी से बता देता हूँ। तो असाइनमेंट, जैसा कि आपने अभी सुना भी होगा कि ये असाइनमेंट बनाना होता है। तो बेसिकली असाइनमेंट, आइए यहाँ पे चलते हैं। असाइनमेंट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपका प्रोग्राम है, इसके अंदर कोर्सेस होते हैं। जैसे कि MEG एक प्रोग्राम है, मास्टर ऑफ इंग्लिश। तो इसमें आपके बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, MEG 1, 2, 3, 4। तो उनसे संबंधित क्वेश्चंस आपको
आपको असाइनमेंट वाले पोर्टल पे जा करके वो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं और फिर उनके आंसर तैयार करने हैं। तो चूंकि ये जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है आपके प्रोग्राम के, थ्योरी होता है, असाइनमेंट होता है, कुछ प्रोग्राम में प्रैक्टिकल भी होते हैं और प्रोजेक्ट भी होते हैं, तो सबका अपना अपना वेटेज होता है। चूंकि ये कंपलसरी है इसलिए इनको आपको तैयार करके अपने अध्ययन केंद्र पे जमा करना होता है। इनको आप इग्नू की वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, तो मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ बार बार। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इसको आप बनाएंगे कैसे। कई बार बच्चे प्रश्न करते हैं कि हम इसको कैसे बनाएंगे, क्या हम इसमें चीजें यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर लिए, इसके बाद आप इनको बनाने के लिए कोई भी A4 साइज की शीट ले सकते हैं या कोई कॉपी ले सकते हैं, कोई रजिस्टर ले सकते हैं। वहां पे आप उन प्रश्नों के उत्तर तैयार करते हैं। प्रश्नों के उत्तर तैयार करने के लिए आप अपना जो स्टडी मटेरियल आपको मिला है उसकी भी मदद ले सकते हैं, और आपका जो अध्ययन केंद्र है वहाँ पे जो आपको काउंसलर्स होते हैं आप उनकी भी मदद ले सकते हैं। जब आप इसको तैयार कर लेते हैं तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं और उसका प्रिंट निकाल के स्टडी सेंटर पे जमा कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो टाइप्ड असाइनमेंट है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको हैंड रिटन असाइनमेंट ही जमा करने हैं, यानी हैंड रिटन असाइनमेंट ही आपको बनाने हैं। तो ये असाइनमेंट के बारे में था। यहाँ पे देखिए एक कवर पेज आपको लगाना होगा जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, आपका एनरोलमेंट नंबर है, आपके प्रोग्राम का नाम है। तो आप एक बार इनको देखिएगा। जहाँ तक सबमिशन की बात है, जो हमारे ये असाइनमेंट हैं ऑफलाइन मोड पे अध्ययन केंद्र पे जमा होते हैं, तो आपको अपने अध्ययन केंद्र पे जाके जमा करना है। 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जब आप असाइनमेंट तैयार करते हैं। सबसे ऊपर आप कवर पेज लगाइए, फिर आप अपना इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड का कॉपी लगाइए, फिर असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस हैं उनका एक सेट यहाँ पे लगाइए और इसके बाद आंसर्स लगाइए। इन चारों को एक साथ करके आप अपने अध्ययन केंद्र पे जमा कर सकते हैं। ये सैंपल के लिए देखिए कवर पेज है, इस तरह से आप बना सकते हैं। मेन जो कवर पेज का ऑब्जेक्टिव है कि इसमें आपका एनरोलमेंट नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए, आपका नाम सही होना चाहिए, आपके प्रोग्राम का नाम सही होना चाहिए, आपके कोर्स का नाम सही होना चाहिए। इसके बाद ये आपका आइडेंटिटी कार्ड का एक आपको फोटो कॉपी लगाना है, ये क्वेश्चन पेपर लगाना है, और इसके बाद ये आपके आंसर्स चालू होंगे जो कि हैंड रिटन होंगे। तो इस तरह से ये असाइनमेंट आप बना सकते हैं। ये सैंपल के लिए था, ये कवर पेज मैंने आपको बता दिया। ये सबमिशन की जो हम बात कर रहे थे कि जब आप अपना असाइनमेंट अध्ययन केंद्र पे जमा करते हैं तो आपके पास एक रिसिप्ट होना चाहिए। तो ज्यादातर अध्ययन केंद्रों ने अपना रिसिप्ट वो खुद ही देते हैं, पर मान लीजिए आपको रिसिप्ट नहीं मिल पाई है तो आप अपने हाथ से भी तैयार कर सकते हैं, जिसमें आपका एनरोलमेंट नंबर होगा, आपके प्रोग्राम का नाम होगा, आपका नाम होगा, और जिस जिस कोर्स के आप असाइनमेंट जमा कर रहे हैं उसकी डिटेल उसमें होगी। आप स्टडी सेंटर पे जमा करें और उनकी स्टैंप उसमें लगवा के अपने पास एक कॉपी रिसिप्ट रख लें। ठीक है, तो ये असाइनमेंट के बारे में था। तो ऑलरेडी ये चीज़ें पहले भी मैंने थोड़ा बहुत कवर किया था। बाकी जब आपके असाइनमेंट कई बार इसमें, हाँ एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही असाइनमेंट जमा करते हैं वो तुरंत जा करके इग्नू का जो हमारा रजिस्ट्रेशन वाला पेज है वहाँ पे असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस का लिंक आता है। ये देखिए असाइनमेंट सबमिशन स्टेटस, यहाँ पे जा करके असाइनमेंट ट्रेस करने लगते हैं कि स्टेटस क्या है। तो चूंकि देखिए ये एक समय लगता है, इस असाइनमेंट के इवैल्यूएशन के कई पार्ट हैं। पहले ये अध्ययन केंद्र पे कलेक्ट होते हैं, फिर सेग्रीगेट होते हैं कोर्स वाइज, फिर इवैल्यूएटर के पास जाते हैं, देन फिर अवार्ड शीट में आपके नंबर लिख के हमारे रीजनल सेंटर पे आते हैं, फिर रीजनल सेंटर पे इनकी एंट्री होती है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इनके जो स्टेटस हैं वो आपको जब थ्योरी का आप एग्जाम देंगे, जैसे उसके रिजल्ट दिखेंगे उसके साथ ही असाइनमेंट के नंबर भी आपको आपके ग्रेड कार्ड पे दिखेंगे। ग्रेड कार्ड कुछ इस तरह से होता है इग्नू का, जहाँ पे कोर्सेस लिखे होते हैं, यहाँ पे असाइनमेंट के नंबर लिखे होते हैं और इधर पे थ्योरी के नंबर लिखे होते हैं। कुछ प्रोग्रामों में नंबर्स चलते हैं, कुछ प्रोग्रामों में ग्रेड्स चलते हैं। तो ये पैटर्न है। तो ये जो मेरे तरफ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। मैं अब अपनी स्क्रीन की शेयरिंग क्लोज करता हूँ। थैंक यू। Thank you so much, Satyendra ji. Thank you very much for giving a very insightful presentation of the digital resources which are available for the students and which have been available by the university, by the IGNOU Regional Center, Noida. Now I request my colleague, Dr. Anjana, to please share her thoughts with the students. Dr. Anjana, please over to you. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एज सच देखें तो पिछले 50 मिनट में हमने अधिकतर जो बातें थी वो सब कवर कर लिया। हो सकता है कि जो मैं आप कहूँ उसमें कुछ रिपीटिशन भी हो सकता है, लेकिन मैं क्विकली एक रिकैप लेना चाहूंगी शुरू से लेकर के अभी तक का।
और कहाँ कहाँ पर हमें किन किन चीजों को ध्यान रखना है उसके बारे में बात करूंगी। देखिए एडमिशन हो चुका है, ये आप सब लोग जानते हैं, और आप इस इंडक्शन मीटिंग में आ जाएं क्योंकि आपका ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है। शुरुआत हमारी होती है आइडेंटिटी कार्ड से। संजय जी ने ऑलरेडी बता दिया है कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करना है। तो देखिए आपके ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडी देयर विल बी 2 पार्ट्स, वन विल बी एडमिनिस्ट्रेटिव, वन विल बी एकेडमिक। तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स का भी ध्यान रखना है ताकि आप समय से पूरा कर लें, और आपको एकेडमिक पार्ट पे तो ऑब्वियसली क्योंकि आप पढ़ाई करने के लिए आपने इग्नू को ज्वाइन किया तो उसको तो आपको ध्यान रखना आवश्यक है ही है, उसमें तो आपको अच्छा परफॉर्म करना ही है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पार्ट्स हैं उसमें खासतौर पर आपकी डेडलाइंस आ जाती है, जैसा कि अभी सत्येंद्र कुशवाहा जी ने बताया, मैडम ने बताया, संजय जी ने बताया कि आपको एग्जाम फॉर्म सबमिट करना है, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करना है, आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। तो ये काम आपको कब कब करना है, इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर जो हमारे विद्यार्थी हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के होपफुली है जिन्होंने आज ज्वाइन किया है। तो आप लोगों का जो इन जनरल प्रोग्राम होता है 2 साल का प्रोग्राम होता है। आपने 1 साल में तो अभी जुलाई 25 में एडमिशन लिया है, आपको दूसरे साल में एडमिशन लेने के लिए री रजिस्ट्रेशन करना होता है। जो सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने का जो प्रोसेस इग्नू में उसको टर्मिनोलॉजी में जो कहते हैं री रजिस्ट्रेशन कहते हैं, वो आपको लेना होगा जुलाई 26 सेशन के लिए, और ये आपको काम कंप्लीट करना होगा मार्च में। तो ये डेडलाइंस जैसा कि अभी बताया गया था कि असाइनमेंट आपको सबमिट करना है मार्च में, आपको री रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है मार्च में, और आपको एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करना है, ऑनलाइन ही होगा वो भी आपको मार्च में करना है। तो ये चीजें आपको, ये डेडलाइंस आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं स्टेप बाय स्टेप चलती हूँ क्योंकि देखिए एडमिशन से लेके प्रोग्राम कंप्लीट करने तक के कई सारे स्टेप्स आ जाते हैं। तो हम रजिस्ट्रेशन स्टेटस की बात कर रहे थे, वो आपने चेक कर लिया, आपने देख लिया कहीं कोई डिस्क्रिपेंसी है, आप रीजनल सेंटर से संपर्क कर लीजिए, उसको अपडेट करा लीजिए। और यदि आप यहाँ से नहीं करना चाहते हैं, आप कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर करना चाहते हैं, किसी वजह से आपका ट्रांसफर कराना है आपको, तो आप संपर्क हमसे कर सकते हैं मेल के थ्रू विद योर आइडेंटिटी कार्ड। हम आपका रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर जहाँ का भी ऑप्ट करना चाहते हैं वहाँ चेंज कर देंगे, प्रोवाइडेड के वहाँ पर वो अवेलेबल हो। अगला काम पढ़ाई का आता है। पढ़ाई आपको करनी है, कहाँ से करनी है? पहली चीज आपकी रिक्वायरमेंट होती है स्टडी मटेरियल की। तो स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी भेज देती है सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने हार्ड कॉपी में ऑप्ट किया होता है। लेकिन बहुत सारे आप में से ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने हार्ड कॉपी ऑप्ट ना किया हो, 15% शायद उन्होंने फी कंसेशन ऑप्ट किया होगा, जिसमें कि आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल भेजा जाता है। तो आपको हार्ड कॉपी में नहीं जाएगा, आपको ऑनलाइन डिजिटल मटेरियल को स्टडी करके डाउनलोड करके स्टडी करना होगा। उसके लिए आप चाहे तो ई ज्ञान कोर्स, चाहे तो हमारे अभी सत्येंद्र कुशवाहा जी ने ई ज्ञान संगम पोर्टल का आपको डेमो दिया था, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके आगे मटेरियल आपके पास अब पहुंच चुका, आपको पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने का काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में जिक्र किया गया था कि काउंसलिंग शेड्यूल्स हमारे वेबसाइट पर अपलोड होते हैं जो हमें स्टडी सेंटर से प्राप्त होते हैं। काउंसलिंग शेड्यूल क्या है? उसमें सेशन शेड्यूल वाइज, कोर्स वाइज शेड्यूल एक स्टडी सेंटर तैयार करता है कि इन कोर्सेज की हमारी क्लासेस इस दिन को इस समय पर होने वाली है। क्योंकि आप डिस्टेंस लर्नर्स हैं तो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि वहां पर आपके लेक्चर्स होंगे या टीचर आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे। यू आर सपोज टू स्टडी इन एडवांस। आपको पढ़ करके जाना है, जिस भी कोर्स की क्लासेस उस दिन होने वाली हैं आपको पढ़कर जाना है, आपको अपनी क्वेरीज नोट करके जानी है, और जो आपके काउंसलर्स वहां पर अवेलेबल होंगे आपको उनके साथ में अपनी क्वेरीज को डिस्कस करना है, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है। सो स्टडिंग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, आवर सपोर्ट इज देयर इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक सपोर्ट थ्रू आवर एकेडमिक काउंसलर्स, जो आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व स्टडी सेंटर पर कर देंगे। नेक्स्ट कम्स योर इवैल्यूएशन, क्योंकि मटेरियल भी आ गया, पढ़ाई भी हो गई, नेक्स्ट कम्स योर इवैल्यूएशन। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर और बता दूं, इवैल्यूएशन के पहले आपके प्रोग्राम के हो सकता है कि कई कंपोनेंट्स हो। कुछ प्रोग्राम में सिर्फ थ्योरी कोर्सेज होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स में थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, फील्ड जर्नल, इस तरह के कंपोनेंट्स हो सकते हैं। आपके प्रोग्राम की क्या रिक्वायरमेंट है? जैसे कि संजय जी ने शेयर किया था रजिस्ट्रेशन स्टेटस में, कुशवाहा जी ने भी दिखाया, रजिस्ट्रेशन स्टेटस में आप देख पा रहे थे आपके कोर्सेज रजिस्टर हैं। तो इग्नू की टर्मिनोलॉजी यू मस्ट बी नोइंग, आपने क्योंकि एडमिशन ले लिया, तो जो प्रोग्राम आपका है उस प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट कोर्सेज हैं। तो वो जो कोर्स है वो किस थियरी है या वो प्रैक्टिकल है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आपकी प्रोग्राम गाइड से मिल जाएगी। ऑब्वियसली प्रोस्पेक्टस में भी आपने देखा ही होगा एडमिशन लेने के पहले, या जब आपने अप्लाई किया तो आपने देखा होगा उसमें कौन कौन से कोर्स हैं। एक बार थॉरली आप अपना प्रोग्राम गाइड में चेक कर लीजिएगा कि आपका कौन से कोर्सेज है, उसमें उसको कंप्लीट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। हो सकता है कि किसी में आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 35% हो सकता है किसी में 50% भी हो। तो वो कोर्स वाइज डिपेंड करता है, प्रोग्राम वाइज डिपेंड करता है, एंड इट इज नॉट जनरल।
it is program specific and course specific. So you should be well aware of the requirements of your program, and that you can get to know from your program guide. You find any difficulty in getting to know, you can always get back to us. You can write to us and we will definitely respond to your query. इवैल्यूएशन की हम आगे बात कर, अच्छा इवैल्यूएशन की बात करने के पहले मैं और बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर हो सकता है कि दो तरह के स्टूडेंट्स हो। ऑनलाइन प्रोग्राम के भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने ऑनलाइन मोड को ऑप्ट किया हो, और ओडीएल मोड के भी हो सकते हैं। तो लेट अस बी वेरी क्लियर कि जो ऑनलाइन मोड के स्टूडेंट्स हैं उनकी काउंसलिंग सेशंस भी ऑनलाइन होंगे और उनके असाइनमेंट सबमिशन भी ऑनलाइन होगा, और यदि उनके प्रोग्राम में प्रोजेक्ट वगैरह कुछ है तो वो भी ऑनलाइन ही सबमिशन होगा। और ऑब्वियसली उनको स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, उनका जो एलएमएस पोर्टल होगा वहीं से वो लोग एक्सेस करेंगे, उनको अलग से कोई मटेरियल नहीं आएगा। तो दैट इज द डिफरेंस। दूसरा ये है कि आपको मोड चेंज करने का यूनिवर्सिटी को प्रोविजन नहीं होता है। अगर आपने ऑनलाइन में एडमिशन लिया है ऑनलाइन प्रोग्राम में तो आपको ऑनलाइन मोड में ही कंप्लीट करना होगा थ्रू एलएमएस, और अगर आपने ओडीएल मोड में लिया है तो आपको ओडीएल मोड में ही कंप्लीट करना होगा। एग्जामिनेशन दोनों के एक ही तरह से होते हैं, यू हैव टू गो टू द एग्जामिनेशन सेंटर। बाकी शेड्यूल सेम रहता है, इट्स जस्ट द मोड ऑफ डिलीवरी ऑफ द प्रोग्राम जहाँ पे कहीं कहीं पर अंतर है, जैसा कि हम लोग आपसे भी शेयर कर रहे हैं। सो मूविंग ऑन टू द इवैल्यूएशन, आपका इवैल्यूएशन दो तरह से होता है। अभी हम बात कर रहे थे असाइनमेंट्स के बारे में कि असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। जो असाइनमेंट है दैट इज लाइक एन ओपन बुक एग्जामिनेशन, कि क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, स्टडी मटेरियल आपके सामने है, रिसोर्सेज आपके सामने है, यू हैव टू सी द क्वेश्चन एंड यू हैव टू राइट द आंसर्स इन योर ओन लैंग्वेज एंड बी श्योर कि आप जो उसके आंसर लिखेंगे आप हैंडराइटिंग, अपनी हैंडराइटिंग में हैंड रिटन असाइनमेंट बनाएंगे, उनको आप स्टडी सेंटर पर सबमिट करेंगे। जो ओडीएल मोड के स्टूडेंट्स हैं, जो ऑनलाइन वाले हैं एलएमएस पोर्टल पर सबमिट करेंगे। और ये असाइनमेंट्स आप बहुत ध्यान से बनाएगा, क्योंकि देखिए इसमें बहुत अच्छा स्कोर होता है। इसका वेटेज एक तो होता है, फाइनल आपके जो रिजल्ट आता है उसमें एक अच्छा वेटेज कैरी करते हैं, अराउंड 30%, मे बी सम वेरिएशन मे बी देयर, लेकिन इन जनरल 30% वेटेज आपका असाइनमेंट का होता है। तो ये तो आप मान के चलिए कि इसमें अगर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो आपका जो फाइनल स्कोर होगा दैट विल ऑब्वियसली बी गोइंग अप बिकॉज ऑफ योर गुड मार्क्स इन दिस असाइनमेंट। तो उसको आप ध्यान से बना लीजिएगा। कहीं कोई आपको क्वेरी होती है, डाउट होता है, तो अपने काउंसलर से आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं आप इनको बनाने के लिए। लेकिन आपको हैंड रिटन बनाने हैं, चाहे आपको ऑनलाइन मोड में सबमिट करना है तो भी आपके असाइनमेंट्स हैंड रिटन होने चाहिए। यदि आपका ओडीएल मोड है तब तो डेफिनेटली आपका हैंड रिटन होगा ही, जैसा कि अभी सत्येंद्र कुशवाहा जी ने उसका डेमो हमें बता दिया था। और उसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा कि अलग अलग कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो प्रैक्टिकल आपके स्टडी सेंटर पर होते हैं, आपको जाना होगा वहां पर, फेस टू फेस मोड में अटेंड करना होगा, देन इवैल्यूएशन विल बी डन एंड दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द योर प्रोग्राम। हो सकता है इन अ स्ट्रेच आपके सब एग्जामिनेशन हो, और सॉरी प्रैक्टिकल्स हो, उसके बाद एग्जामिनेशन, लाइक बीएससी में होता है या एमएससी में होता है कि इन अ स्ट्रेच काउंसलिंग सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं प्रैक्टिकल के लिए, उसके बाद में लास्ट डे उनका एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। या दूसरे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं कि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दिया होता है, उसके बाद में फिर आपके हम प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशंस कंडक्ट करते हैं, उसके बाद में फिर एग्जामिनेशन होता है। तो दैट ऑल डिपेंड्स, और उसका जो टाइमली इंफॉर्मेशन है वो हमारी वेबसाइट से आपको, रीजनल सेंटर वेबसाइट हम लोगों ने चैट बॉक्स में भी लिख दिया था, वहां से आपको थ्रू काउंसलिंग शेड्यूल पहुंच जाता है। और प्रैक्टिकल का शेड्यूल तो स्टडी सेंटर भी आपको भेजता है, और हम लोग भी आपको जैसे स्टडी सेंटर से आता है तो हम लोग भी इसको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो दैट वाज द इवैल्यूएशन पार्ट ऑफ दिस इंटरनल इवैल्यूएशन की पहले हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट कम्स टू एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। एक्सटर्नल इवैल्यूएशन पे जैसे कि बताया गया कि आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है, आपको हॉल टिकट डाउनलोड करना है। फॉर्म आप फिल करेंगे मार्च में, हॉल टिकट आपका जनरेट होगा इन जनरल जो होता है बाय मिड ऑफ मे जनरेट हो जाएगा। आप उसको डाउनलोड करेंगे, उसका प्रिंट लेंगे, आइडेंटिटी कार्ड के साथ में आप एग्जामिनेशन सेंटर जाएंगे, वहां पर आप एग्जाम में अपीयर होंगे। जब जिस भी तरह से आपका शेड्यूल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको जाना होगा, एग्जाम देना होगा। Once the exams are over, then your result will be declared by the university tentatively within 45 days of conduct of examination, conclusion of examination, not conduct of examination। हो सकता है कि आप में से किसी का एग्जाम 1 जून को ही हो जाए, तो डोंट एक्सपेक्ट कि 15 जुलाई को आपका रिजल्ट आएगा। If our exams conclude on 15th of July, so you may expect by the starting of September, आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसी समय पर जो आपके असाइनमेंट के मार्क्स होंगे वो आपके अपडेट हो जाएंगे, और ये आप देख पाएंगे ग्रेड कार्ड से। दो तरह से आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे, एक आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट होगा, एक आपका ग्रेड कार्ड में रिजल्ट होगा। तो ग्रेड कार्ड में आपके सारे कंपोनेंट्स का रिजल्ट दिखाई देता है, और जो टर्म एंड एग्जामिनेशन का रिजल्ट होता है उसमें आपके थ्योरी एग्जाम में आपने कितना स्कोर किया है वो आपका वहां पर रिफ्लेक्ट होगा। तो इस तरह से करके आप अपना प्रोग्राम में आगे बढ़ सकते हैं। लाइकवाइज इट वुड बी इन द सेकंड ईयर, ये प्रोसेस आपका सेम रहेगा
एक्सेप्ट फॉर द रजिस्ट्रेशन कि आपको सेकेंड ईयर में प्री रजिस्ट्रेशन टाइमली करा लेना है। उसके बाद में और मैं बताना चाहूंगी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, जो ऑल्दो फ्लेक्सिबिलिटी है इग्नू में, लेकिन हम रिकमेंड यही करते हैं कि प्लीज डोंट अवेल दीज फ्लेक्सिबिलिटीज एज अ मैटर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यूज इट एज एन एक्सेप्शन। अगर आप कोशिश कीजिए कि आपका प्रोग्राम अगर 2 साल का है लेकिन मैक्सिमम ड्यूरेशन यूनिवर्सिटी ने 4 साल आपको दे दिया है, इसको उस तरह मत दीजिए कि हम 4 साल में पूरा करेंगे। कोशिश कीजिए कि हम 2 ही साल में अपने प्रोग्राम को कंप्लीट कर लें। और इसका एक और मैं आपको खास फायदा बता दूं, अगर आप 2 साल में करते हैं, बहुत अच्छा स्कोर अगर आप कर लेते हैं, तो वी हैव द एक्सपीरियंस ऑफ अवर रीजनल सेंटर के हमारे काफी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कि गोल्ड मेडल मिलता है। अब गोल्ड मेडल मिलता उस सूरत में है कि एक तो आपको प्रोग्राम मिनिमम ड्यूरेशन में कंप्लीट करना होता है, दूसरा आपका हाईएस्ट स्कोर होना चाहिए अमंगस्ट योर क्लासमेट्स कहूँ या जो आपके प्रोग्राम में एनरोल्ड स्टूडेंट्स होते हैं उस पर्टिकुलर सेशन के, उसमें अगर आपका हाईएस्ट स्कोर आता है देन यू वुड बी द गोल्ड मेडलिस्ट। सो डू ट्राई टू परफॉर्म द बेस्ट दैट यू कैन एंड बी द गोल्ड मेडलिस्ट एंड मेक अस आल्सो प्राउड एंड योरसेल्फ आल्सो प्राउड। तो उसके लिए आप जरूर कोशिश कीजिएगा। देन वी कम टू द ऑथेंटिक सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसा कि हमारे अभी साथियों ने बताया आपको कि हमारे वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया चैनल्स हैं। देखिए कुछ तो वेबसाइट्स और सोशल मीडिया चैनल्स हैं वो हम इग्नू जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं वो मैनेज किए जा रहे हैं, हम लोग मैनेज करते हैं, यूनिवर्सिटी मैनेज करती है। लेकिन बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि देखिए आजकल कोई कंट्रोल तो कर नहीं सकता। अगर कोई एक्सटर्नल एजेंसी कोई इग्नू आरसी नोएडा के नाम से कोई टेलीग्राम चैनल बना दे या कोई फेसबुक चैनल बना दे तो वो उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो हम आप ही को अवेयर कर सकते हैं, हमारे विद्यार्थियों को ही हम अवेयर कर सकते हैं, उन्हीं को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं जिसके की लिंक्स हम रीजनल सेंटर वेबसाइट पर हमने अपडेट किए हुए हैं, आप उन्हीं पर दी हुई इंफॉर्मेशन को ऑथेंटिक मानिएगा। वहां पर जो डेडलाइंस दी जाती हैं, वहां जो नोटिफिकेशंस अपलोड किए जाते हैं या जो हमारी वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं जो कि इग्नू डोमेन से होती है, लाइक आरसी नोएडा के तो rcnoida.ignu.ac.in, बाकी कोई दूसरे रीजनल सेंटर होते हैं उनके अपने डोमेन्स होते हैं, बट इट कंक्लूड्स विद ignu.ac.in। वहीं से आप इंफॉर्मेशन जो मिलती है उसी को ऑथेंटिक मानिएगा। जो हमारे यूट्यूब चैनल से मिलती है आपको इन्फॉर्मेशन वही ऑथेंटिक मानिएगा, क्योंकि कोई प्राइवेट एजेंसी, कोई प्राइवेट किसी का चैनल है, वो आज से आपको क्या गाइड कर रहा है उसके बारे में हम कुछ भी आपको नहीं कह सकते। और उसकी वजह से यदि आपको कोई नुकसान होता है तो यूनिवर्सिटी विल डेफिनेटली नॉट बी रिस्पॉन्सिबल एंड वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड एडवाइजरी इन दिस रिगार्ड ऑन अवर वेबसाइट, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, दैट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द ऑथेंटिक सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज अबाउट योर क्वेरीज। अभी हम लोगों ने हालांकि कोशिश की है कि हम जितने भी इंफॉर्मेशन थी आप सब तक पहुंचा दें। लगभग 1 घंटा 5 मिनट में हमने कोशिश यही की है कि आपसे हमसे कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी ना रहे जो छूट गई हो, हम ना पहुंचा पाए हो। लेकिन फिर भी यदि कोई आपकी क्वेरी होती है आप रीजनल सेंटर को मेल कर सकते हैं। जैसा कि संजय जी ने कहा कि आप हमें मेल कीजिए, हम उसको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जब मेल भेजते हैं, डोंट एक्सपेक्ट दैट यू आर द ओनली वन हु इज सेंडिंग ईमेल टू अस। वी हैव more than 50,000 students and we get a good number of emails every day. तो आपके ईमेल को रिप्लाई किया जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटेड रिप्लाई नहीं जाता है। We have to see the reality कि आप जो हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं हम उसी का सही उत्तर आप तक पहुंचाए। तो नेचुरली अगर हमारे इतने विद्यार्थी हैं, उनकी क्वेरीज हमारे पास आती हैं, तो आप भी समझ सकते हैं कि हमें थोड़ा सा तो समय की जरूरत होगी, हमें एक्स्ट्रा समय चाहिए होगा आपकी क्वेरी को रिप्लाई करने के लिए। तो डोंट सेंड रिपीटेड ईमेल्स। आप एक मेल भेज दीजिए, एटलीस्ट आप 3 दिन वेट कर लीजिए। अगर आपको लगता है नहीं अब तो 3 दिन तो अब हो गया है और अभी भी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, 3 दिन मतलब 3 वर्किंग डे। सैटरडे संडे इज ऑफ फॉर अस, तो सैटरडे संडे को छोड़ दीजिए। उसके अलावा 3 वर्किंग डे का आप वेट कर लीजिए। उसके बावजूद भी अगर आपकी कोई क्वेरी का आंसर नहीं आता है, देन यू कैन ऑलवेज सेंड अ रिमाइंडर टू अस एंड वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। रेस्ट एश्योर्ड, वी आर देयर विद यू। आपको कहीं कोई समस्या, हमारी तरफ से हम कोशिश करेंगे कभी कोई किसी तरह की समस्या ना आए, और हम बिल्कुल आपके साथ हैं। और हमारी इच्छा रहेगी, हमारी कोशिश रहेगी कि आपका जो हमारे साथ में ये जर्नी है बहुत ही स्मूथली कंप्लीट हो जाए और आप एक अच्छे स्कोर के साथ में अपने प्रोग्राम को हमारे विश्वविद्यालय से पूरा कर पाए। मेरी शुभकामनाओं के सहित और सभी को धन्यवाद। नमस्कार। Thank you so much, Dr. Anjana, for summarizing and also giving some additional information, useful tips to the students. Now I'm opening the question answers box. So the students, if you have some questions to be asked, you may please put your questions in the question answer box.
आप लोग अपना क्वेश्चंस, स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप लोग अपनी क्वेरीज या क्वेश्चंस क्वेश्चन बॉक्स में प्लीज टाइप कर सकते हैं. Deadline for assignment submission is already over for July 25. No, that is the assignments last date for July 25. That is for the semester programs. Mr. Ravi Chaudhary, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आप लोगों ने मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन लिया है. पहले ही मैंने कहा था शुरू में ये एनुअल प्रोग्राम है, तो आपका जो असाइनमेंट डेट है वो 31 मार्च होगा. 31 मार्च आपका लास्ट डेट होगा. आपके स्टडी सेंटर में आपको जमा करना पड़ेगा. एक स्टूडेंट है अरुणेश सिंगल जो कह रहा है इन माय डिलीवरी स्टेटस इट इज शोन नो एनरोलमेंट नंबर फाउंड. संजय जी आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मुझे लगता है मटेरियल डिस्पैच के बारे में ये बोल रहे हैं. मैडम ये मेटल डिस्प्लेस के बारे में अगर वो वहां पर उनका नंबर शो नहीं कर रहा है तो ये अभी रिसेंटली कंफर्म हुआ है एडमिशन. अभी वो रजिस्ट्रेशन डिटेल में नहीं आया होगा, तो जब रजिस्ट्रेशन डिटेल में आ जाएगा तब भी वो वहां पर शो करेगा. और एक स्टूडेंट अभिषेक सारस्वत है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद संजय जी आप ही जवाब दे दीजिए इसका. हाउ टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप? स्कॉलरशिप के लिए तो हमारे पास में हमारे इग्नू की तरफ से तो कुछ नहीं होता है. ये तो जो एनएसपी पोर्टल होता है उसी पे जाकर के अप्लाई इनको करना होता है. अगर इनका प्रोग्राम वहाँ रिफ्लेक्ट करता है तो ये तो हम जो भी स्कॉलरशिप केवल हम उसके फॉर्म को वेरीफाई करते हैं, लेकिन वो अपने एनएसपी पोर्टल पे जाकर के अप्लाई करते हैं. इग्नू की तरफ से ऐसा कुछ स्कॉलरशिप नहीं होता है. एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कैन वी विजिट अवर एलोकेटेड कॉलेज नाउ? जी, हम उनको डेटा भेज चुके हैं और वो अपने कॉलेज में विजिट कर सकते हैं जाके. एक चीज जो हम लोग को ध्यान देने वाली होगी हमारे विद्यार्थियों को भी कि इग्नू के जो स्टडी सेंटर्स हैं वो जनरली वीकेंड पर काम करते हैं. रेस्ट ऑफ द डेज दे आर वर्किंग फॉर देयर ओन कॉलेज. और इग्नू का जो वो काम करते हैं, स्टूडेंट्स को अटेंड करते हैं, डील करते हैं, दैट इज जनरली ऑन सैटरडेज एंड संडेज. तो आप एक बार जाने के पहले देख लीजिएगा कि आपका जो स्टडी सेंटर है उन्होंने कोई वर्किंग आवर्स दिए हैं या नहीं दिए हैं. प्रेफरेबली यू गो ऑन संडे morning 10 to 11. That would be the safest time when you can go and get in touch with your coordinator or the academic counselor. That is the safest time for you to go. एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं अदिति जैन, where I can download iCard? You can do it from your समर्थ पोर्टल. ये आपको पहले भी बताया गया था. समर्थ पोर्टल से आप अपना iCard डाउनलोड कर सकते हैं. और खुशी भारद्वाज, how will we know what is our position in the class in order to get gold medal? But you will be getting to know once your examination and your examinations and the examination of all your batchmates are complete. When the data of convocation reaches us, then we get to know who is the gold medalist in our program. Gold medalist, I think Anjana, Dr. Anjana, gold medalist, the students will get to know once the convocations are declared. The whole course, I mean the program is complete and the convocations are declared. Then let me tell the student, inform them that regional center does not declare the gold medal. It is basically student evaluation division, IGNOU Maidangadi. They, in a centralized manner for all students all over the country, they do the assessment, and the student who gets the highest marks all over the country in a minimum duration of the study will get the gold medalist. That is the thing. Now, one student, Rakesh Kumar Srivastav, says, Madam, December exam for September admission also. No, you will have to appear in June 26. If the program is annual, just in case if the program is semester based, we don't know the program he isn't mentioned. Yeah, right. If the program is annual, then in case you will have to go for June 26. Otherwise, if your semester based program is there, then it could be December also. Right. One student is asking, Anchal Mathur पूछ रहे हैं, do we have to pay exam fee separately? सत्येंद्र जी, आप इसके बारे में बताना चाहेंगे? जी मैम, बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ कि एक तो रजिस्ट्रेशन के बारे में बार बार लिख रहे हैं कि हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, एग्जाम का भी लिख रहे हैं. तो जैसा कि मैम शुरू में हम लोगों ने बताया था कि आज जो हमने मीटिंग रखी है
ये मास्टर प्रोग्राम के विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने जुलाई 2025 सेशन में एडमिशन लिया है। तो अब आपकी जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होनी है, जो आपको अपना एग्जाम फॉर्म भरना है, री रजिस्ट्रेशन करना है, वो मार्च 2026 में होगा। इस दौरान आपको क्या करना है, अपने असाइनमेंट तैयार करने हैं, अपने स्टडी सेंटर पे जाना है, वहां पे आपकी क्लासेस होंगी। क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपको हम मेल से भी भेजते हैं, और हमारी जो रीजनल सेंटर की वेबसाइट है उसमें काउंसलिंग का एक सेक्शन हमने बना रखा है, वहां पे हम शेड्यूल लगाते हैं। तो आप उन शेड्यूल को देखते रहिए, जैसे ही आपके कॉलेज का शेड्यूल आए आप अपनी क्लासेस अटेंड करिए। One student abhi is writing, can we directly collect study material from IGNOU headquarters? नहीं, I don't think so. संजय जी, study material directly तो नहीं, हाँ रीजनल सेंटर से कलेक्ट कर सकते हैं, पर आपको अपना प्रोग्राम बताना पड़ेगा, पहले अवेलेबिलिटी हमें देखनी पड़ेगी। रीजनल सेंटर से भी मैडम तभी होगा अगर वो उनका पैकेट हमारे पास वापस आया है तो। हाँ राइट, वही है कि पहले आप अगर जो स्टूडेंट है वो मेल कर दे, और मेल करके वो पता कर ले, और अकॉर्डिंगली देन वी कैन डू इट। जी जी, then accordingly we can do it. आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं ऑलरेडी इसके बारे में हमने बात कर ली है। आप जब हमारे रीजनल सेंटर नोएडा की वेबसाइट देखेंगे तो हमने ऑलरेडी जो आज का हमारा सेशन है, जिन चीजों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे लगाया है। तो आप चाहें तो वहां पे आप देख लीजिएगा, मैं एक बार शेयर करके आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे आप जब जाएंगे न्यूज सेक्शन में, तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर न्यूली एनरोल्ड स्टूडेंट्स इन जुलाई 2025 सेशन, तो आप इस पेज पे जैसे ही जाएंगे ना तो आपको एक पीडीएफ फाइल मिलेगी, वो इस तरह से है। इसमें पूरी डिटेल्स दी हुई है, आप एक बार इसको अच्छे से विजिट करिए। आपकी वेबसाइट के बारे में, सोशल मीडिया के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में, एग्जामिनेशन के बारे में, जो जो एक्टिविटी है वो सब आपको इसमें मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल इसके लिए परेशान ना हो। बाकी और कोई आपको कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत हो रही है, तो जो हमारा ईमेल आईडी है rcnoida@ignou.ac.in, उस पर आप मेल कर सकते हैं। संजय जी, एक स्टूडेंट है, वो कहते हैं कि उनका जो नाम है रजिस्ट्रेशन स्टेटस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो जो उनका शादी के बाद नाम है वो नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा, पुराना रिफ्लेक्ट हो रहा है, और जबकि उनका नाम को चेंज हो गया है, तो उसके बारे में उनको जानना चाहते हैं। तो उसके लिए वो एक हमें एक ईमेल भेज देंगे और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उसमें अटैच कर देंगे, तो हम वो अपडेट कर देंगे नेट पे। ईमेल के थ्रू हमें भेजें, हम उसके बेस पे हम उसको अपडेट कर देंगे। There is a student is asking if it's annual based program, so is the value of our program less than the semester one? There is some student in the name of Anonymous, and his question is, if it's annual based program, so the value of program is less than the semester one. Whether your program is semester based or it is annual based doesn't make a difference. It is only the methodology that has changed. So there are certain programs which are annual programs, wherein annual, in what I mean by saying annual, does not mean that you're completing your master's program in 1 year. It is annual means basically that you have, let's say, MA previous and MA final. It will be obviously in 2 years, but then you will not appear in the exams after every 6 months. You will be appearing in the exams after 1 year. So that is what annual means, and semester is basically the methodology. As I said, there are, like in MCA, in MBA, there are certain these programs there you have to re-register after every 6 months, and exams are also accordingly after every 6 months. So it is how it's the pedagogy and the methodology of the program which identifies whether the program is annual program or semester-based program, but that does not that has nothing to do with the value of the program. Nothing to do with the value of the program. I think now we can, Dr. Anjana, would you like to just
wrap up and then we khatam kare, complete I was just trying to go through the questions that have been asked, if there is something that we can answer. There's a student, he's writing that he has received an email to collect the course material from RC. Will it not come to my home? So maybe the reason is कि उनको by post भेजा गया होगा उनके address पर and it hasn't delivered to his address and it has come back to RC. So that might be the reason that he has got the email from regional center to collect it from RC. Otherwise, as such, it gets delivered to their address. As such, it will be delivered. If he doesn't come to collect the material, it will be delivered. It will be delivered to his address, provided he is given the correct address. I think the rest of the questions are likewise only that we have already discussed. And if there is any question, we have the recording of this session and we'll be uploading it on our YouTube channel of Regional Center Noida. So if there is any further query, any question that we have not been able to take it up here, you can write to us to Regional Center Noida at rcnoida@igno.ac.in. Otherwise, we have shown you so many resources, so many links and platforms from where you have the information available to you. You can get it from there. Otherwise, you can send an email to us and we will be happy to respond to all your queries. But be specific, write your enrollment number, write your program, and whatever the query is there, please be very specific. Do not be one-liner and do not write an essay also. So just be specific what you want to know and you remain in touch with your study center. Classes आपकी वहीं से होंगी, आप schedule देख लीजिएगा, study center चले जाइएगा और जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शन आपके स्टडी सेंटर से मिलती है फर्दर आप उसको फॉलो कीजिएगा. इसमें एक स्टूडेंट है तारुलिका शर्मा. शी इज आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन. ऑल द वीडियोस शोन ड्यूरिंग इंडक्शन, इज देयर एनी सोर्स वेयर वी कैन एक्सेस देम फॉर द गाइड पर्पस? मतलब ये स्टूडेंट ये जानना चाहती हैं कि जो वीडियोस हम लोगों ने शेयर किया है इंडक्शन मीटिंग में, स्टूडेंट्स को अभी शो किया है, वो कहाँ पे एक्सेस कर सकती हैं. तो मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि ये जो इंडक्शन मीटिंग है ये पूरा रिकॉर्डेड है, ये पूरा रिकॉर्डेड है और ये 1-2 दिन में आरसी नोएडा का जो यूट्यूब चैनल है उसमें ये अवेलेबल हो जाएगा. और बाकी जो जैसे ई ज्ञान संगम है उसका लिंक है, आप वो इग्नू के हमारे रीजनल सेंटर की वेबसाइट में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके एक्सेस कर सकते हैं. बाकी एक और इंडक्शन का जो शॉर्ट वीडियो 2-3 मिनट्स का हमारे कलीग मिस्टर सत्येंद्र शाह जी ने दिखाया था, वो भी यूट्यूब अवेलेबल है, तो आप जाके वहां पे उनको देख सकते हैं. और इंडक्शन में जो भी इंफॉर्मेशन सारी दी गई है वो सारे रिसोर्सेज हमारे डिजिटल रिसोर्सेज हमारे वेबसाइट में, आरसी नोएडा के वेबसाइट में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके उनको एक्सेस कर सकती हैं, वहां से आप उनको पढ़ सकती हैं. आई थिंक वी कैन क्लोज नाउ. Ma'am, not many questions. Students have the question whether the assignments have been uploaded. So since it's July 25 session, they have taken the admission. It might just be possible that their assignments have not yet been uploaded. In general, तो assignments upload कर दिए गए हैं, तो चेक कर लें. अगर उसके बावजूद भी कोई ऐसा रहता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम का नहीं है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि आपको तो 31 मार्च तक सबमिट करना होगा. इट विल बी मार्च और अप्रैल, उस समय सबमिट करना होगा. आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए. इन द मीन टाइम यू स्टार्ट स्टडिंग विद योर स्टडी मटेरियल. यू डोंट पैनिक, देयर इज नथिंग टू वरी. अगर अभी नहीं दिख रहा है तो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में वो अपलोड हो जाएगा. यू विल गेट टू नो दिस फ्रॉम द वेबसाइट. वैसे भी इन स्टूडेंट्स के पास बहुत टाइम है, इनको मार्च में जमा करना है. और ये भी है, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें 31 मार्च को ही जमा करना है, हम पहले नहीं जमा कर सकते. नहीं, आप पहले भी कर सकते हैं, आप मार्च फर्स्ट वीक में भी कर सकते हैं, आप फरवरी लास्ट वीक में भी कर सकते हैं. आप अपने स्टडी सेंटर में जाके जमा कर सकते हैं, पर्सनली जाके जमा कर सकते हैं, चाहे तो बाय पोस्ट भेज सकते हैं, बाय कुरियर भेज सकते हैं, किसी के हाथ से भी आप उसको भिजवा सकते हैं, जाके जमा करवा सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पर्सनली ही जाके वहाँ पे जमा करवाना पड़ेगा. मान लीजिए आप नहीं जा पा रहे हैं, आपके फादर हैं, आपके ब्रदर हैं, आपके सिस्टर हैं, जिसके थ्रू आप जमा कराना चाहते हैं, आप जमा करा सकते हैं. सो one last question, because please. The student Dr. Shweta Tyagi, she has been raising hand also. She has written if she wants to know whether she can change the medium. तो संजय जी प्लीज बताएगा क्या ये मीडियम अपने प्रोग्राम का चेंज कर सकते हैं और इनका क्या प्रोसीजर. इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए फर्दर कहाँ से ये रेफर कर सकते हैं, जो जनरल यूनिवर्सिटी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो कहाँ से इनको पता चल सकते हैं. ये प्लीज एक ही उसमें आप आंसर कर दीजिएगा. मीडियम चेंज कर सकते हैं मैम, वो हमारा प्रोस्पेक्टस में भी दिया हुआ है, लेकिन उसमें प्रोस्पेक्टस में ये भी है कि फीस उनको देनी पड़ेगी. अपना जो भी मीडियम चेंज करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन फीस उनको देनी पड़ेगी.
लेकिन अगर वो चाहें, अगर उनका इंग्लिश मीडियम है, अगर वो हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में वो पेपर दे सकते हैं। अगर वो इनका हिंदी मीडियम उन्होंने ऑप्ट कर लिया है तो इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में पेपर दे सकते हैं। और रही बात स्टडी मटेरियल की, तो वो अपना अरेंजमेंट कर लें, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि जो मीडियम चेंज की फीस है वो लगभग उतनी ही फीस हो जाती है जितनी उन्होंने पे की है एडमिशन के लिए। तो इसलिए हम तो ये कहेंगे कि आप कोई ऐसा अरेंजमेंट कर लीजिए जिससे कि आप अपना उसी मीडियम में अपना मटेरियल आपको मिल जाए, मीडियम चेंज कराना आपको ना पड़े। अगर आप फिर भी कराना चाहते हैं तो आप करा लीजिए, लेकिन उसकी फीस आपको देनी पड़ेगी। संजय जी, आज सच मतलब कोई जरूरत नहीं है मीडियम चेंज कराने की, क्योंकि मटेरियल तो एनी केस इनको दोनों मीडियम में डिजिटल फॉर्म में तो अवेलेबल हो ही जाएगा। हाँ जी, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। अगर वो नहीं भी कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो अपना स्टडी मटेरियल अरेंज कर देते हैं और अपना पेपर तो दोनों लैंग्वेज में आएगा, तो वो उसको उसके हिसाब से दे सकते हैं। And it is one of the flexibilities जो यूनिवर्सिटी इनको प्रोवाइड करती है कि भले ही आपने मीडियम दूसरा ऑप्ट किया हुआ है, लेकिन आप दूसरी लैंग्वेज में अगर देना चाहते हैं, प्रोवाइडेड कि उस लैंग्वेज में हमारा वो पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है, तो आप उस लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, अपना एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो यू कैन टेक योर ओन डिसीजन वेदर यू वांट टू गो फॉर चेंज ऑफ मीडियम, और यू कैन जस्ट गो अहेड विद दिस पर्टिकुलर मीडियम एंड राइट योर एग्जामिनेशन इन द मीडियम ऑफ योर चॉइस, लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस। Ma'am, I think now we can close this meeting, and if we would just request our students, if there is anything left, they can write to us. Okay. Well, now we are bringing this induction meeting to a close. Once again, I would ask or advise the students to look at all the digital resources. Please check our websites, check the RC Noida website, check the IGNOU website, and also see all our official social media channels. Yeah, this I would also like to tell you that please don't get carried away. देखिए, आप लोगों के पास हो सकता है अननोन सोर्सेस से ईमेल आए, अननोन सोर्सेस से व्हाट्सएप ग्रुप में इनवाइट आए, आप लोगों के पास एसएमएस आए, प्लीज उन पे आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, क्योंकि आप कोई भी अननोन रिसोर्स को आप एक्सेप्ट करेंगे, कोई भी अननोन रिसोर्स का मेल को आप जवाब देंगे, कोई भी अननोन व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करेंगे, उसके लिए इग्नू या इग्नू रीजनल सेंटर नोएडा बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप सिर्फ जो इग्नू रीजनल सेंटर नोएडा का वेबसाइट है, इग्नू रीजनल सेंटर नोएडा के जो ईमेल आईडीज हैं, और इग्नू रीजनल सेंटर की जो सोशल मीडिया है, सिर्फ आप उन्हीं को फॉलो कीजिए, और उसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसी को आप फॉलो कीजिए, उसी को आप इम्प्लीमेंट कीजिए, उसी को आप अपने स्टडीज के लिए यूज कीजिए। इसके अलावा आपके पास अगर कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी भी अदर पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट आए, तो आप लोग नहीं करोगे। इग्नू का फीस आप दे चुके हो, इसके अलावा आपको सिर्फ फीस देना है, एग्जामिनेशन फॉर्म भरते वक्त आपको फीस देना है, या जैसे संजय जी ने बताया, मान लीजिए आप मीडियम चेंज करना चाहते हैं, या कोई ऑफिशियल मान लीजिए क्रेडिट ट्रांसफर का कोई केस है, उसके लिए आपको फीस देना है, या कॉन्वोकेशन की डिग्री के लिए आपको फीस देना है, तो उसके लिए आपको फीस देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अगर बाहर से कोई भी कैसे भी किसी भी तरह से अगर आपको कोई फीस मांगता है, दैट is not our responsibility, that is not IGNOU's responsibility. So with this very important information, I'm closing, we are bringing this induction meeting to a close. You can see the recording in the YouTube, and also you can see the website for further information. You can, like Dr. Anjana, my colleague, she told you, if you have any further doubts, you can please refer to your program guide, and if still your question remains unanswered, you can send email. Dr. Anjana, you want to say something? Yes, ma'am, if you kindly permit, can I take one last question, because that seems to be something very important we should answer here. It's student Apar Vashisht, and the question is to know if the examinations are conducted on weekdays or weekends, because she or he is working professional and wants to know, because they might have to apply for leave also. So they want to know if there is any mandatory day when they have to visit the regional center in person, और ये इनके एग्जामिनेशन वीकेंड पर होंगे या वीकडे पर होंगे। सत्येंद्र कुशवाहा जी, आप प्लीज इस पर रोशनी थोड़ा सा डाल दीजिए, ताकि हम ये लास्ट क्वेश्चन लेकर के फिर इस मीटिंग को खत्म करें। जी मैम, जो हमारी इग्नू की काउंसलिंग क्लासेस होती हैं आपके अध्ययन केंद्र पे, सामान्य तौर पे वीकेंड पे ही होती हैं, सैटरडे संडे होती हैं,
और जो इनका समय रहता है, कई बार ये इवनिंग में भी होती है। क्वेश्चन एग्जामिनेशन के बारे में है। ओके मैम, एग्जामिनेशन के बारे में मैं बता देता हूँ मैम कि अभी जो हमारे मास्टर प्रोग्राम के विद्यार्थी हैं, इनका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो मार्च 2026 में आएगा, और एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद ही आप जून 2026 में एग्जाम में अपीयर हो पाएंगे अपने प्रथम वर्ष के एग्जाम के लिए। और ये जो एग्जामिनेशन होते हैं ये वीकेंड पर नहीं होते हैं, ड्यूरिंग द वीक डेज होते हैं, मंडे टू सैटरडे एग्जामिनेशंस होते हैं। तो जब भी आपका देखिए टेंटेटिव डेट शीट पहले आ जाती है, इन जनरल मान के चल सकते हैं कि मार्च या अप्रैल में वो डेट शीट आ जाएगी। उसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो टेंटेटिवली कब होने वाला है। एट टाइम्स इट सो हैपेंस कि एट द लास्ट मोमेंट देयर आर सम चेंजेस इन द शेड्यूल, बट इन जनरल वही रहता है। उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं और अपना जो लीव है अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एग्जामिनेशन आपका ड्यूरिंग द वीक डेज ही होगा। और कोई ऐसा मैंडेटरी आपको रीजनल सेंटर पर आने का जैसा कुछ नहीं है। अगर हाँ आपका कोई प्रोजेक्ट है, आपका प्रोजेक्ट कंपोनेंट है और वो रीजनल सेंटर पर उसका वाइवा अगर फेस टू फेस मोड में कंडक्ट होना होता है, देन इन दैट केस यू विल हैव टू कम टू द रीजनल सेंटर। और यदि कोई प्रोग्राम ऐसा है कि जिसमें कोई प्रोजेक्ट नहीं है और कोई प्रैक्टिकल कंपोनेंट नहीं है, तो फिर आपको एज सच कहीं पर जाना कोई मैंडेटरी नहीं होगा। So you'll have to go through your program guide and know your program as such to get the exact detail, and any further information about your program, you can write to us to our mail ID and we will respond to it. I think, ma'am, that's it. I will not interfere further for any any further question. I'll not interfere, and we may bring it to the conclusion, ma'am, please. Thank you so much, all the students who have joined. We are fortunate enough that we saw a large number of students today joining this induction meeting. We wish all of you a lot of success. We wish you all the best in your academic journey with Indira Gandhi National Open University, and we hope that you will find your next 2 years or 3 years very, very engaging and enjoyable while you study with us. I would also like to request my colleague Dr. Anjana, Deputy Director, IGNOU Regional Center Noida, for her insightful address. I also would like to thank, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे colleague श्री संजय कुमार जी, EDP, जिन्होंने एडमिशन के बाद का जो सारा जर्नी है उसके बारे में स्टूडेंट्स को बताया। और मैं स्पेशल धन्यवाद इवन सत्येंद्र कुशवाहा जी को देना चाहूंगी, जो हमारे AEDP हैं, जिन्होंने डिजिटल रिसोर्सेस के बारे में इंडक्शन वीडियो भी शेयर किया, और हमारा RC नोएडा का जो ई ज्ञान संगम वेबसाइट है, वेब पोर्टल है, उसका डेमो दिया और वेबसाइट के बारे में बताया, इंपॉर्टेंट लिंक्स के बारे में बताया। तो इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी। वंस अगेन थैंक यू to all the students. You are our important stakeholders and we are there because of you. Thank you so much and God bless all of you. Thank you. Thank you, ma'am. Namaskar. Thank you, ma'am.